What is the question? We have this rectangle is having one side is twice the other. So एक consider करेंगे एक side को तो दूसरी 2x हो जाएगी. और perimeter is given as 60. So sum of all the sides is perimeter. So sum of all the sides is 6x. So x value मिल गई 10. Area of rectangle find out करना है. Length into breadth. So x is 10, 2x is 20. So that is 200. In the same way, you have to find out the area is given 3000 square meter and the ratio of length and breadth is given 6/5. You have to find out the perimeter. Perimeter means same. L पूरे चारों साइड का एडिशन फाइंड आउट करना है. तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करेंगे. लेंथ और ब्रेड्थ 6/5 में है तो लेंथ का वैल्यू 6/5 b यहाँ पे रख देंगे. एरिया है 3000 तो b स्क्वायर हो जाएगा. फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो b वैल्यू मिल जाएगी और b मिल गया तो फिर लेंथ का वैल्यू भी मिल जाएगी और फिर उसको ऐड कर लेंगे. मिली क्या वैल्यू b की, राइट. L is having for 6/5 b. So 6/5 ये साइड आके क्या हो जाएगा 3000 into 5 15,000 divided by 6. So b square means and this 15,000 by 6 से cancel out करेंगे. 6 2s are 12, 6 5s are 30, so 22,500. And this is the square of b, so b will be what 50. 5 square is 25 and this 20. So 50 we will put up here in the value of length. So 6/5 into 50. So this 5 will divide this and 10, 6 into 10, 60. And length and breadth we have now. Length और breadth मिल गई तो उसको perimeter में रख देंगे. 2 times length plus breadth means add कर देंगे इसको. So that is 220 centimeter will be the perimeter of the rectangular square yard. In the question it is given that one side is 10, another is 14, height is 5. So we draw this 10, 14, 5 and the area of trapezium we know is 1/2 sum of parallel into height. So parallel side का add कर दिए 10 plus 14, height is 5. So if we multiply this and divide that by 2, you will get that 60 centimeter square. So this will be the area of trapezium. और एक बार देख लो क्वेश्चन हमारे पास क्या है. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड और उसका क्या है एरिया 3000 स्क्वायर मीटर गिवन है और इसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो गिवन है दैट इज 6/5, 6:5. तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हमको उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूटिलाइज करना है. L/B इज इक्वल्स टू 6/5 ये गिवन है क्वेश्चन. तो ये b को ये साइड लेकर आ जाएंगे तो दिस विल बी व्हाट 6/5 b. और एरिया ऑफ हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन क्या रहता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो एरिया है गिवन 3000, लेंथ हमने फाइंड आउट किए 6/5 b और ये b अब सिर्फ 5 ये 6/5 ये साइड आगे क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा. 6 डिनोमिनेटर में 5 into 3 15. इसको सॉल्व करेंगे 25 और ये b into b स्क्वायर. सो दैट इज 25. इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 दैट इज 50. ये b मिल गया. b का वैल्यू l के अंदर रख देंगे. सो दैट विल बी 6/5 into b दैट इज 5 कैंसल आउट हो जाएगा. 6 into 10 60. और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है मतलब लेंथ और ब्रेड्थ ऐड कर देंगे तो दो साइड रहते हैं लेंथ और ब्रेड्थ 2 times l प्लस या फिर चारों साइड ऐड कर दो दैट इज 220 मीटर. Okay, so this was what about the rectangular. Like area of trapezium, area of rhombus in the similar way. So what we did here, area of rhombus आपको याद रखना है 1/2 into product of the diagonals. So diagonal values are given 30 and 16. So we will multiply and divide that by 2. So that is 240. So in the similar way, if the sides or if the diagonals are unknown and area is given, area अगर given है diagonal find out करना है तो यही formula use करेंगे. यहाँ पर भी कोई एक parallel side given नहीं है, area given है, height given है, एक side given है तो दूसरी side find out कर सकते. ठीक है. So the important thing is what you have to remember all the related formulas. Now what we'll do is ठीक है. First of all, okay, let me calculate. So this is what cuboid.
क्यूबॉइड है ये, तो अब फेस किसको बोलेंगे? ये एक साइड हमारे पास फ्रंट वाला एक, नीचे डाउन बॉटम पे एक, ये वाला, ये अपर वाला एक, और बैक साइड। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4। तो ये एक रोटेशन में 4 हो जाएंगे, और ये साइड एक और ये साइड एक, मतलब टोटल 6 फेसेस रहेंगे। आप कोई भी ऐसा बॉक्स सपोज कर लो ना, कोई भी प्रोडक्ट आप मंगाते हैं, मतलब जो भी है बॉक्स पैक में आया, वो इस टाइप में पैक होके आया है, तो वो एक क्यूबॉइड का शेप है। दो रेक्टेंगुलर को हमने, दो रेक्टेंगल को कनेक्ट कर दिए, दैट इज ऑल्सो क्यूबॉइड। अब यहाँ पे देखो, ये साइड और ये साइड पैरेलल है और इनका साइज भी सेम रहेगा। तो सेम पीछे वाला जो रेक्टेंगल है उसका भी दोनों साइज सेम रहेंगे। इसकी लेंथ, ये दोनों की सेम, चारों की लेंथ सेम रहेगी। और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के यहाँ पे चारों साइड सेम रहेंगे और यहाँ पे भी चारों साइड सेम रहेंगे। ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रेक्टेंगल अगर रहता तो रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा? हमको पता है क्या रहता है रेक्टेंगल का एरिया। हाँ, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने फेसेस है? देखो, टोटल 6 फेसेस है। तो अगर हमको एरिया कैलकुलेट करना है इस शेप का, तो एरिया क्या हो जाएगा? सामने वाले रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ और पीछे वाले रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। ये वाले जो है, ये सामने वाले रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ और पीछे वाले रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ सेम हो जाएगा, राइट। तो ये एक हो गया। और ये जो भी रेक्टेंगल या स्क्वायर है, इसका और इसका एरिया सेम हो जाएगा। और ये अपर टॉप के ऊपर जो है और ये बॉटम पे जो है, इनका एरिया सेम हो जाएगा, राइट। तो हम ये क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो भी हमारे पास शेप आ रहे हैं उसको रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे, और उसका जो एरिया रहेगा वो उसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल से कंसीडर कर लेंगे। और फिर वॉल्यूम भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई विल शो यू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड विल बी व्हाट? 2 टाइम्स ये एक रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे हम सबको लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं बोलेंगे, एक लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी तो दूसरी हाइट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या करने का, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो वो लेंथ, ये जो लेंथ है, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसको 3 साइड्स के कंसीडर करेंगे। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस cuboid will be surface area of this cuboid will be 2 times length into breadth plus breadth into height plus height into length। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला याद रख लो आप, सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है। सो दिस इज the volume and surface area of the cuboid. So with the example you can easily get how to calculate this. So let us take one simple example in which we have to calculate the surface area. पहले surface area देखेंगे, बाद में volume देखेंगे. So suppose we want to calculate the surface area of the cuboid whose length dimensions are given, length, breadth and height is given. So use this above formula and tell me what would be the surface area of the cuboid. यहाँ पे L का वैल्यू 25 है, B का वैल्यू 20 है और H का वैल्यू 12 है. Calculate this and tell me, right? So surface area of cuboid we have to find out. So consider the given length, that is 25, this is 20, breadth and height is 12 centimeter. So surface area of cuboid will represent this by ST. So what this formula, 2L into B, V into H plus H into L. So we'll do the same, 2 into 25 into 20 plus 20 into 12 plus 12 into 25. So if we simplify this after multiplying these two, you will get 2080 centimeter square. So this is the surface area, and keep in mind this is surface area is there. So because of that, this is centimeter square. Right? So the surface area of this length, breadth and height will be 2080. First of all, what is given? A matchbox whose size is given 4 by 2.5 by 1.5. Length, breadth और height given है। तो ऐसे मैच बॉक्स, ये हाइट ये कॉन्फ़िगरेशन वाले मैच बॉक्स 12 अगर हमने एक बॉक्स के अंदर रखे तो उस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा? ठीक है। और फिर
दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच पैकेट्स, और ये अगर इतना बड़ा बॉक्स है 60, 30 और 25, तो उसके अंदर कितने मैच बॉक्स आएंगे। तो वन बाय व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन इज गिवन, वी हैव, हमारे पास एक ऐसा मैच बॉक्स है जिसका ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। तो ऐसे एक पैकेट में कितने हैं, 12 बॉक्स है, 12 मैच बॉक्स है। तो ऐसे पैकेट इस बॉक्स में कितने आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किए, वॉल्यूम ऑफ द मैच बॉक्स फाइंड आउट किए, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 दैट इज 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किए, क्यों, क्योंकि एक पैकेट में इस वॉल्यूम के 12 मैच बॉक्स है। तो 12 इंटू 15 दैट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो बॉक्स है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया हमने पहले, 60 इंटू 30 इंटू 24 दैट इज 43,200 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस वॉल्यूम के अंदर इस वॉल्यूम वाले कितने आएंगे, तो उसके लिए हमने उसको डिवाइड कर दिया, 43,200 डिवाइडेड बाय 180। सो इसको डिवाइड करेंगे, सो दैट विल बी व्हाट, 240 सच पैकेट विल बी प्लेस इन सच टाइप ऑफ बॉक्स। ऐसे बड़े बॉक्स में ये 12 पैकेट वाले 240 पैकेट्स आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। First of all, surface area for such type of shape which is cube is nothing but 6 into L square and volume is L cube. The question is what? We want to find out, calculate the surface area of the cube having length 5.3. So let's put up this here in place of L. So 6 into 5.3 square. So that is nothing but 168.54. In the similar way, we can find out the volume of this. Volume क्या आएगा बोलो मुझे, 5.3 को 3 बार मतलब मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 5.3 क्यूब, राइट। टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ वन साइड, 6L square is equals to 96, 96 divided by 6 and this is 16 and square root of that is 4 centimeter. So in the similar way we can get such type of question, right। 10,000 is given as a volume, so volume का formula है हमारे पास L cube, L cube is equals to 10,000 centimeter cube. So इसको ये यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे, सो दैट इज 10, 10,000 इज क्यूब ऑफ 10। सो L की वैल्यू मिल गई, लेंथ ऑफ वन साइड, सो सरफेस एरिया इज हैविंग द फॉर्मूला 6L square. So just substitute in place of L, that is 6 into 10 square, 600 centimeter square will be the total surface area. तो एक ही साइड दिया हुआ है, मतलब इसके पूरे साइड सेम रहते हैं, इसलिए 3 cubes whose edges are given, फर्स्ट का है 3, दूसरे का है, दूसरे क्यूब का है 4 सेंटीमीटर, थर्ड क्यूब का है 5 सेंटीमीटर। प्रॉमिस ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक बड़ा क्यूब बन रहे। तो जो बड़ा क्यूब बना रहे हैं उसकी एज हमको फाइंड आउट करना है और उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। डू इट। सो व्हाट वी डिड हियर, सो 3 क्यूब है, 3 क्यूब का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। सो 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, जो हमारे पास बड़ी क्यूब का ये है साइड वॉल्यूम है एक्स क्यूब, सो दैट इज 216, उसका इस क्यूब रूट लेंगे, दैट इज 6 सेंटीमीटर। एज मिल गई बड़े क्यूब की, तो बड़े क्यूब का हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, दैट इज 6 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 6 स्क्वायर, दैट इज अगेन 216। So in this way we can find out the area, surface area, volume of the cube or cuboid.